evening. I hope it will be a cooler evening. And I want to warmly welcome and hoping for cooler days. All of you, I mean, to make this effort, and most grateful to our guests today, and they're from the world of theatre. Mr. Chittaranjan Tripathi, who is at present the director of the National School of Drama, which is the premier institute in the country of theatre from decades. It has a long history, and it has theatre in India has really played out from its portals, shaped by so many greats. And we are very, very pleased to have our woman guest, a very veteran, senior television and television artist, started off with that. But there are many, many accolades that she has. I mean, if you start from the beginning, she's a trained Kathak and Manipuri and Rabindri dance. And she's one of the foremost A-grade voices, and she's done numerous radio plays. She's acted in several serials and docudramas, and the finest and the most accolades that she has got is for the first Indian soap opera, which is Hum Log. So we are very, very pleased. And I'm sorry going back into because they're two greats, and they span such a wide time space, but also the media and the entertainment theatre space. So it's very difficult to संक्षेप में उनके बारे में बताना. But Sir जो है, he comes from a family of folk singers in Odisha. It's Pala Gayan, and that's where he got his inspiration from, to tell the stories to the local people. And from there he gravitated towards LSD, and he has retained that. He's acted in one of the Odia films called Holi Express, directed it, sorry. And it has gone on to win 3 awards. And he's acted in innumerable serials, he's directed, and he's acted in Bollywood films. And his the play that he's most famous for, Taj Mahal Ka Tender, we talked about, is the longest running show. It's I think 28 years. So it's really quite amazing. So I would like to stop here because there is so much more that we can all add, because all of us have seen the growth, and we've partaken in your success, and we have learned from that. So this particular interaction is not so much about the subject, but about your experiences as in theatre, in the arts, in the media also, and how you see it panning out in today's world, in which there are OTT platforms and social media has given such a fillip to artists, which wasn't there even in the 70s, 80s, even till the 90s. So what that means for the young and the old breed of actors and artists and musicians and so many other producers, directors, and what it means for the art itself, the art of theatre, where it is going in terms of, are you looking at innovations and newer ways of reaching out to newer audiences? Are you looking at ways to inculcate and inspire young people to come into this, which also means the economic component of repertories are there, but are they economically viable for young people to even spend a few years? So what are the other options and avenues, whether is it through the state, is it through corporate, is it through other foundations or bodies, in order to encourage young talent and make theatre, as I think you've also mentioned in your TED series, that it's a mirror of yourself. Theatre is also about uplifting yourself and seeing yourself and society in a different way, in a more expansive way. So can you throw some light on that? I would say that those are the broad things. And also just one more thing is, in today's times, not just here but all over the world, theatre being so powerful, it can be used for propaganda. It is being used for propaganda.
So the agitprop theatre movement started in the Soviet Union. Do you see, either playing itself out here, or potential, or good and bad? I mean, it could be both. So what are your views on that? So I'm leaving it completely open for you to pick and choose. This is a wider, questions that we're looking at. Or we want, rather not question, we want to expand our own, knowledge and insights into the world of theatre. We're all in the world of media, print media, digital, television, Hindi, English language. So that is our membership, but we would love to know more. So over to you. Theatre Nagar, I think we should talk more of theatre stalwarts, I would say. So, namaste to all. It's in fact a great honor to be here. You all are noted journalists and मैं यहाँ पर कुछ बोना धोना करके जाऊँगा so that आप कभी माइंड में रहेगा तो थिएटर के लिए कुछ कभी लिखेंगे, कोई चर्चा करेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि समाज जो है ये अभी वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है, तो अंग्रेजी में जब लिख कर आता है आर्टिकल्स तो हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि कितना बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज मिल गया हमको अंग्रेजी में लिख के आया कि थिएटर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। 2500 साल पहले जब नाट्यशास्त्र लिखा गया तो वहाँ पे बोल गया कि थिएटर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, लेकिन हम सोए नींद में, और क्योंकि हमारी चीज़ें सब झूठ और हमारी चीज़ें सब मनगढ़ंत, इस तरह के नैरेटिव चला, और 70-80 साल पहले जब वहाँ से लिख के आया that theatre is actually a reflection of society, people got enlightened and they thought that theatre is a very powerful medium. Indeed, it's a very, very powerful medium. Till the time the so-called concept of society is there, theatre is going to be there. It is a blunt medium. It is then and there in front of you. Either it is good, bad, ugly. When I say good, bad, ugly, it is to do with the presentation of a particular text. So if I take an example of Shakespeare's Hamlet, you cannot say it's a bad play because it's a great play. And for so many hundreds of years, we all have a consensus that Shakespeare was a great playwright and Hamlet or Macbeth, great plays. But it depends how one director presents it, and if he fails to present it in a good way, then you say that the production was bad. It is not that the text was bad. So likewise, theatre as a medium, it is beyond good, bad, ugly. It is actually the way we present it and we perceive it. So ये था, ये है, ये रहेगा, ये अजर है, ये अमर है, इसको ना आग जला सकती, ना इसको पानी में कोई डुबा सकता है। ये उस तरह का एक दानव है या उस तरह का एक देवता है जो अमर है, और ये हमेशा हमारे साथ रह के हमें एंटरटेन करने के जरिए बहुत सारी बातों को उजागर करता है और हमें अपनी औकात दिखाता है। सो जब नाट्यशास्त्र के टाइम वो 2-4 मिनट बोल सकता हूँ, ऐसा ना बात को सो नाट्यशास्त्र जब लिखा गया तो भरत मुनि पहुंचे अपने 100 पुत्रों को लेकर कि मैं पहला नाटक करूंगा, और नाटक था समुद्र मंथन। ये नाटक भी मैंने डायरेक्ट किया है, एनएसटी में चलता है। हमारा जो अभी समर थिएटर फेस्टिवल चल रहा है उसका एंड होगा समुद्र मंथन पे। नाटक जब होता है तो ब्रह्मा जी से बात होती है, वो कहते हैं सबको बुलाओ, नाटक सबको दिखाओ। तो आदमी मनुष्य नाटक समुद्र मंथन करते हैं, देवताओं को बुलाते हैं, मानवों को बुलाते हैं, दानवों को बुलाते हैं। टुवर्ड्स द एंड, क्लाइमैक्स के आसपास, जब वो दानव देखते हैं कि विष्णु जी मोहिनी बन के आए और उनको छल कपट से अमृत नहीं दिया, तो वो नाराज हो जाते हैं। वो
कहते हैं हमारा मजाक बना रहे हो, खूब मारते हैं एक्टर्स को। तो कई सारी बातें सिंबॉलिक है, मैं उस पर आऊँगा। एक्टर्स पिटपुटा के जाते हैं, कहते भाई हम तो नाटक कर रहे, हमको क्यों मारा। तो दानव कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि हमें बुला के हमारे सामने ये सब दिखा रहे हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई ये तो सबके लिए आईना है, सो यू हैव टू बी टॉलरेंट। आप मारपीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कहानी आपको दिखा रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है। तो मैं नाटक वाला, हमारा कोई दोष नहीं है। सोसाइटी हैज टू बी टॉलरेंट। और वहां पे मजे की बात यह है कि जो विष्णु भगवान मोहिनी बन के आते हैं उसको भी छुपाया नहीं गया, और उसको बाकायदा दिखाया जाता है कि वो आए और उन्होंने कैसे करके लेके चले गए। सो जिनमें थोड़ी बुद्धि कम या जिनमें टॉलरेंस कम था उन्होंने मारपीट कर। तो आज भी थिएटर जो है, थिएटर वालों से लोग घबराते हैं, क्योंकि उनका आगा ना पीछा फिर बोलते हैं। कारण ये नहीं कि वो निर्भीक है, कारण ये कि भोले। जैसे हमसे कोई नाराज हो जाता है, हम कहते हैं नाराज क्यों हो, तुमको तो एक्स्ट्रा प्यार करना चाहिए कि देखो हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं, बोल देते हैं, उसका रिपोर्टेशन के लिए भी नहीं सोचते हैं। सो आप लोग हमसे नाराज क्यों हो जाते हैं? सो थिएटर वालों से ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग घबराते हैं। कारण ये है क्योंकि वो आईना दिखाने के शोरूम में बैठे हैं। अब आए तो आप आईना, तो आप कहते हैं यार मेरा नाक ऐसे क्यों दिखा, भाई तेरा नाक ऐसा है, मैं क्या करूँ, तो आईना दिखा। हमारा काम यही है कि सिनेमा, OTT, टेलीविजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रील्स, ये सब रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ थिएटर है। ये थिएटर से परे नहीं है। कई लोग कहते हैं भाई इंडस्ट्री वाले कोर्स करते हैं थिएटर का, जाके फिल्म में एक्टिंग करते हैं। अरे एक्टिंग तो कर रहा है। दूसरी बात है, सिनेमा वालों से पूछो कि वो थिएटर क्यों कर रहे हैं। आप थिएटर वालों से पूछ रहे हैं कि सिनेमा क्यों कर, क्योंकि सिनेमा थिएटर इसलिए करता है, इसलिए वो लिखते हैं स्क्रीन प्ले। सो एंड ऑफ द डे इट इज अ प्ले व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन। उनसे पूछो कि तुम थिएटर क्यों कर रहे हो, हमसे क्यों पूछो। हम तो यहाँ भी थिएटर कर रहे हैं, वहाँ भी थिएटर कर रहे हैं। यहाँ पर हम पर्दे को हटा के करते हैं, वहाँ पर हम पर्दे के ऊपर करते हैं, हमें कोई रिकॉर्ड करता है, एंड somebody has the authority to take decisions कि मेरा थोड़ा लगाएगा या मेरा ओवर द शोल्डर शॉट बोलते हैं उस पे करके स्टार को दिखाएगा, क्योंकि स्टार को भी मेरा थोड़ा पसंद आना चाहिए। प्रोड्यूसर को, स्टार को, पता नहीं कितने कितने प्लेयर्स होते हैं सिनेमा में, तो उन सबको मेरा थोड़ा पसंद आना चाहिए, मेरा हुनर भी पसंद आना चाहिए। मेरा हुनर तब तक पसंद नहीं आता जब तक परमात्मा एक एक्सीडेंटली एक चमत्कार नहीं, तब तक आई डोंट एग्जिस्ट। आई एम जस्ट, ये जैसे रखा गया है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन प्रॉप। इधर उधर जाओ, इधर चले गए, इधर आ जाओ। कुछ चमत्कार अगर हो जाता है तो फिर लोग मेरे हिस्से का ऑक्सीजन को ले जाते हैं और कहते हैं क्या एक्टर है, तो ऐसे मैं कहता हूँ मेरे हिस्से का ऑक्सीजन मत लो। तब जाके थोड़ा उसको दिखना शुरू हो जाता है, फिर आप लोग मेहमान होते हैं, आर्टिकल्स छापते हैं, फिर उस बेचारे का पगार बढ़ जाता है, पर डे बढ़ जाता है, फिर पर डे से वो पैकेज में आ जाता है, फिर उसको लोग स्टार बोलते हैं और फिर कहानी शुरू हो जाती है। फिर वो पेज 3 पे पैसे देकर छपवाता है और फिर लोगों को ये गलतफहमी दिलाता है कि मेरे बारे में मीडिया लिख रहा है, जबकि इट इज पेड फॉर। इस सब इल्यूजन तब तक जो है हम लोग केवल और केवल थिएटर करते हैं, और कुछ आता नहीं है। एक किरदार दे दिया जाता है, समझा दिया जाता है, आप यहाँ आए, एक्शन कैसे करें। सो इट इज अ रिकॉर्डेड मीडियम ऑफ थिएटर, सिनेमा। सो थिएटर तब था, आज है, कल होगा। रिकॉर्डेड मीडियम होते होते अभी AI आ गया। AI अमिताभ बच्चन साहब को भी क्रिएट कर सकता है। AI किसी अभी सुप्रीम कोर्ट जाके बड़े बड़े स्टार्स अपनी लीगल राइट्स ले रहे हैं कि मुझे कोई मेरा क्लोन ना बनाए, क्योंकि बनाएगा तो मुझे पैसे भी दे। तो अमरत्व की तरफ जो इमेज है वो जा रहा है, वो दौड़ रहे हैं अमरत्व प्राप्त के लिए, लेकिन थिएटर तो अमरत्व प्राप्त कर चुका है। असली अमृत जो है वो थिएटर में है।
क्योंकि थिएटर इज एसेंशियली रोल प्लेइंग के बगैर इंसान तो छोड़ो, जानवरों की भी कोई फॉर्म नहीं बन सकती। तो इसलिए, और रही पैसे की बात हो रही थी कि OTT आ गया, लोगों को रोजगार मिल गया, ये हो गया, ये परसेप्शन है। क्योंकि आप कुछ एक्टर्स को देख लेते हैं, आप कभी सोचिए पॉपुलेशन ऑफ एक्टर्स इन मुंबई, उनको देखिए कितने लोग रोज जाते हैं और कितने लोग धक्के खा के वापस आते हैं, पर अब वापस आने वाले बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा नशा है, इसका रिहैबिलिटेशन संभव नहीं है इस जगह में। जिसको भी नशे की लत लग गई, उसको आप कुछ भी समझाएं, उसको कहीं भी ले जाएं, उसको झटके भी दें, वो कहेगा मैं तो मुंबई में पड़ा रहता है या चेन्नई में पड़ा रहता है या कहीं भी पड़ा रहता है, तो वो तो है ही, और भी उस नशे की तलाश में या नशा लेके और लोग आ जाते हैं। मैं कला के नशा की बात कर रहा हूँ। तो उस तरह से देखा जाए तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है कुछ भी नहीं। अब आता है पैसे पे, चेहरा दिखता जरूर है और उतना पैसा नहीं मिलता कि वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ लीड कर पाए जैसे आप लोग जीते हैं, जैसे बच्चा एक अच्छे स्कूल में जा पाए, छत हो, 4 पहिया तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब मैं बचपन में बड़ा हुआ, हमने तो खाली फ्रिज का नाम सुना था। जब मैं दिल्ली आया, NST में पढ़ने के बाद एक कस्तूरबा गांधी मार्ग पे NS अपार्टमेंट्स है, उसके पीछे उनके सर्वेंट क्वार्टर्स है। तो वहाँ किसने मुझे बोला कि यहाँ पे 1700 रुपये में कमरा मिलता है। तो मैंने कहा बढ़िया है, NST में नौकरी लग गई थी, पैदल आ जाऊँगा, ऑटो का खर्चा बढ़ जाएगा। तो मैं वो सर्वेंट क्वार्टर्स में जाके एक रूम लिया और एक पंखा लगा दिया और एक मटका ले लिया पानी पीने के लिए। तो मेरा एक फ्रेंड जो ऑल इंडिया रेडियो में काम करता था, वो आया मुझसे मिलने, उसकी बेटी थी साथ में। उसने कहा मुझे पानी पीना है, मैंने मटके से दिया तो उसने बोला आपके पास फ्रिज नहीं। उसके फादर को लगा मुझे बुरा लगेगा, बोला कैसे बात करेंगे, वो सही बोल रही है, उनको पैदा हुई है फ्रिज देखते हुए, तो उसको लग रहा होगा कि जो एक्चुअल लाइफ है, सो रेफ्रिजरेटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। तो इस तरह की जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ का जो परसेप्शन है, उसको लेके एक्टर को चिनावी है, उसके पास सारी सुविधाएं हो, तो उस सब को देखा जाए तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। अभी ये परसेप्शन जरूर है कि बहुत लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन क्या काम मिल रहा है, उसमें से कितने लोग स्टार बनने के इल्यूजन क्रिएट कर पा रहे हैं और कितने लोग सच में स्टार बन पाते हैं, कितने लोग सच में सस्टेन कर पाते हैं, और उसकी जो गोरख धंधा है, उस गोरख धंधे को कितने लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं। कई बार हम गोरख धंधा समझ जाते हैं, प्रैक्टिस में आता। जैसे लोग मुझे कहते हैं कि तुम सोशलाइज नहीं करते हो, तुम लोगों को फोन नहीं करते, जो मैं मुंबई में था काम के लिए, हमें सब पता है, पर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आता नहीं है कि किसी को फोन करके मुझे काम दे दो, मुझे कुछ रोल दे दो, वो सबसे होता नहीं। लेकिन समाज में आज भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो दर ठोकर खा रहे हैं, आज भी MBAs हैं जो दर ठोकर खा रहे हैं, आज भी जर्नलिज्म के कोर्स करने वाले दर ठोकर खा रहे हैं। सो इसको लेके हतोत्साह होने की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लाइफ है, ये चलता रहेगा, जर्नी है। हम सबको खाली अमृत चाहिए, हलाहल भी तो लेना पड़ेगा। सबको स्टारडम चाहिए, सबको नाम चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन कोई जीवन को जीवन की तरह लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये उठापटक है, इसमें ये सब कुछ होगा। कभी सक्सेस मिलेगा, कभी फेलियर मिलेगा, कभी सक्सेस मिलते मिलते हाथ से छूट जाएगा। जैसे मैं एक फिल्म में मेरी कास्टिंग होते होते रह गई बजरंगी भाईजान में, उसमें नवाज सिद्दीकी जी को काम मिल गया। अगर वो रोल मिलता तो शायद मैं अभी कुछ और कर रहा होता। सो ये तो जीवन है, इसमें रोना धोना क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभाव है, जो कष्ट है, जो आर्थिक संकट है, ये सब लाइफ का हिस्सा है। बीमारी, एक्सटेसी, सब कुछ। तो इसको लेके ये जो समझ मेरे अंदर आया है, या जो एक ठहराव का अपने लिए तो कह सकता हूँ, ये थिएटर की देन। इसलिए थिएटर को पंचम वेद यहाँ कहा गया, उसको एक सेक्रेड टेक्स्ट के नाम से नाट्य शास्त्र को रखा गया। ये आप ही का देश है जो ऐसा सोच सकता था, बाकी देश ऐसा सोच नहीं पाया आज तक। ये आप ही का देश है जिसने कहा कि ये नाट्य क्रीड़ा है, प्ले,
प्ले तो बाद में आया वहाँ से। क्रीड़ा है ये आप ही के देश ने कहा था, ये आप ही का देश। हमने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के कुछ श्लोक वहाँ लगा रखे हैं, 6000 श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि नाटक जो है वो थकान दूर करता है, विषाद मतलब मन में जो दुख है वो दूर करता है, आपकी जो मेंटल टायर्डनेस है, फिजिकल टायर्डनेस से दूर करता है। नाटक ज्ञानवर्धक होता है और तमाम चीज़ें। तो आज साइकेट्रिस्ट के पास जाके 5000 दे के गोली ला के आके हम सो जाते हैं। साइकेट्रिस्ट हमको यही समझाते हैं मोटा मोटी कि जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो। तो यहाँ आप ही के देश में आपके भूखंड में लिखा गया कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, यानी कि जो हुआ सो हुआ। जियो, रोज जियो और जीने की कोशिश करो, और जीते रहना हमारा काम है। हम जीते जी खुद को मारते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो स्टार हो गया, मैं रह गया, मेरे को 3 लाइन का रोल मिला। हम खुद को मारते रहते हैं, क्योंकि कर्म कर फल की चिंता कर वाली फिलोसफी से दूर है। ये नाट्य शास्त्र भी सिखाता है, ये भगवत गीता भी सिखाता है। और जो सच में कला के जगत में आना चाहता है, जो कलाकार बनना चाहता है, इन सब चीज़ों से वो अलग होता है। इसलिए आपके देश में नाट्य शास्त्र लिखने के लिए कोई PhD स्कॉलर की जरूरत नहीं पड़ी थी, आपको एक मुनि की जरूरत पड़ी। मुनि का अर्थ है मनन चिंतन के जो शिखर में पहुंच जाए मुनि है। सो ग्रेट इंटेलेक्चुअल जिसने उसको लिखा। तो आप लोग वर्कशॉप करिए, आप लोग भी भरतपुत्र बनिए, बहुत मज़ा आनंद आएगा, क्योंकि ये बेसिकली रोल प्लेइंग है। और जब हम रोल प्लेइंग को सीख जाते हैं या थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो कई प्रॉब्लम्स, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स भी दूर होता है। हम समझने की कोशिश करते हैं दूसरे को, या समझने की समझदारी की ओर थोड़ा जा पाते हैं। ऐसा सब कुछ चलता है मैडम। मैं चुप नहीं होगा, मुझे चुप करा दीजिए। तो सर मेरा एक बिल्कुल इंटेंशन नहीं है, चलते जाइए और ज्ञान बांटते जाइए। मैं एक बात बोलना चाह रही थी कि जो फिल्म और थिएटर खासकर उसमें जो विमेन का जो पार्टिसिपेशन है और उनकी जो डिपिक्शन है उसको लेके, मतलब आई वुड सर्टेनली वांट यू टू थिंक एंड टॉक अबाउट इट, शेयर योर एक्सपीरियंसेस। बट आपका क्या इसमें रवैया और ऑब्जर्वेशन रहा है ओवरऑल, जो आप कह रहे हैं कि मतलब पुरखों से जो चला आ रहा है नाट्य शास्त्र, तो उसके अंदर क्या, उसके अंदर ज्ञान है, या आज आप क्या देख रहे हैं? एंड आज के दौर में where women are in every field and doing everything, and yet they are facing so many challenges. What would you say? चैलेंजेस तो हर समय रहेगा। इस देश में कुछ विडंबनाएं बीच में हुई, जिस वजह से चीज़ें बदली। नहीं तो सारे पुराण और पोथी खोल के पढ़ो, तो जहाँ सब हार जाते थे तब ऐसी माता के पास। सो सिंबॉलिकली या फिलोसॉफिकली, स्पिरिचुअली हमें ये कहा गया है कि जो पावर ऑफ वुमन जो है वो अनलिमिटेड है। इसलिए शक्ति कह दिया गया। शक्ति के आगे तो कोई पावर ही नहीं। जब शक्ति ही कह दिया तो पावर ही नहीं है। शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य आते थे साउथ से और अपने ज्ञान के बारे में लोगों से ज्ञान बांट रहे थे, अपनी फिलोसॉफी और सब कुछ, तो मंडन मिश्रा जी ने उनको रोका। उन्होंने कहा कि हम आपको मानते नहीं, और वाद विवाद होगा, अगर आप, मैं हार जाऊंगा तो मैं आपका शिष्य करूंगा। ये हमारा समाज था, मैं हार जाऊंगा तो आपका मर्डर नहीं करूँगा, आपका शिष्य करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, आपसे और सीखूंगा। ऐसे समाज से हम संबंध रखते हैं। और मंडन मिश्रा हारते हैं, उसके बाद सब लोग कहते हैं ठीक है, वो कहते हैं चलो फिर मैं आज से, तो उनकी पत्नी आती है, वो कहती है हेलो एक मिनट, अर्धांगिनी में आधे को रहा है, 7 दिन तो वो भी तर्क वितर्क में लग जाते हैं। इसका मतलब है कि इस समाज में, बाकी आप सबको पता है गार्गी और संतान है, तो इस समाज में ऐसा नहीं था कि स्त्रियों को जिस रूप में हमने पिछले 200 साल में देखा होगा, ऐसी स्त्रियों को ट्रीट किया गया था। और स्त्रियों के पास एक अपार शक्ति है। वो जैसे जैसे आप सो कॉल्ड लिबरल, हम कहते हैं, मैं लिबरल नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जब हम फिर से इंसानियत की तरफ बढ़ने लगे, जब हम सबको
सम्मान देने लगे और सहयोग देने लगे और उनको मौका देने लगे, तो आज देखिए CBSE में लड़कियां आगे हैं और बहुत सारी चीज़ों में लोग आगे हैं। तो शक्ति जो कहा है किसी ज़माने में किसने कहा, हमारे तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन रहा नहीं, पर शक्ति जिन्होंने भी कहा, एक ने कहा, एक से 100 ने कहा, शक्ति मतलब रियल पावर। अब आते हैं नाटक में। नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र है कि फीमेल्स का रोल फीमेल्स को ही करना चाहिए। जब इसका जिक्र 2500 साल पहले है तो इसका मतलब है कि लोग करते थे, करते होंगे, और फिर साथ में इस तरह की जो हमारे महान महिलाएं रहीं जिनके बारे में हमें समय समय पर हम पढ़ते हैं और जानते हैं, तो इतना बुरा था नहीं। फिर कुछ कुछ होता गया और ये इवोल्यूशन है, उठा पटक होता है। और आज जब फिर से हम देखते हैं फीमेल्स को तो बहुत आगे हैं। हाँ, अभी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं कि जो मेल स्टार्स हैं दे आर बेटर पेड और मोर पेड। अब वो भी धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि व्यवधान भी बहुत कम होता जा रहा है। और मुझे एक बात याद आ रही है, जब खुदा गवाह फिल्म हुई थी तो श्रीदेवी जी ने कहा था जितना पैसा बच्चन साहब लेंगे उतना पैसे दोगे तो मैं करूँगी, और मिला। सो आज अगर ये चर्चा हो रही है तो आप देखिए, प्रोत्साहन देने के लिए श्रीदेवी उस समय उन्होंने ये किया, एंड इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई जिद कर दी, बिकॉज ऑफ हर टैलेंट, एबिलिटी, हर पावर एज एन एक्ट्रेस। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये सब डिस्कशन जो है वो होना चाहिए, होने से उसका पॉजिटिव असर होता है। लेकिन हमारा समाज बहुत बुरा नहीं था, तो समाज की जो अच्छाइयाँ थी उसको अगर हम रिडिस्कवर करें और उसको फिर से हम फॉलो करने की कोशिश करें, इसमें कोई फैनेटिसिज्म नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो फैनेटिसिज्म है तो फिर जीरो जो है आर्यभट्ट ने किया, फिर तो कहेंगे ये तो ब्राह्मण ने किया, ये तो हिंदू जीरो है। पाई इसी देश में कहेंगे ये भारत का पाई है, डेसिमल इसी देश में, डेसिमल भी भारत का है। ऐसे रामानुजन को बोलेंगे कि भाई ब्राह्मण, ऐसा नहीं। जब हम मैथमेटिक्स की तरफ पढ़ते हैं तो हम कंप्लीटली सारी चीज़ों को छोड़ के बड़े एक साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, जात पात से ऊपर उठ गए। इसलिए हमारे समाज का जो फिलॉसफी है, जो प्रैक्टिस रहा है, उसको जात पात के दायरे से ऊपर बढ़ के ऊपर जाकर जब आप देखेंगे, अवलोकन करेंगे और उसको हम विश्वास करके उस प्रैक्टिस में लाएंगे, मेल फीमेल दोनों, तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। पहले दासी प्रथा और सती प्रथा हुआ करती थी बहुत साल पहले, और उसमें लिखा है सकल कौन सा पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। ये क्या था? महिलाओं को शुरू से ही दबाया गया है। वैदिक एज में तो नहीं था, मैं वही कह रहा हूँ कि विडम्बना बीच में हुई है, और ये मेरा पर्सनल थियरी है, मतलब मैं इसको माफ़ी चाहते हुए बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि मर्दों को लगा है कि भाई ये हमसे आगे हैं, उनको कूट काट के घर के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कहीं कोई थियरी मेरे पास नहीं है, बट मुझे ये लगा कि क्योंकि उसको लगा कि भाई मार मुँह के इसको अंदर रखो, और जब आपको मौका मिला तो फिर लोगों को लगता है, क्योंकि कई बार स्कूल में छोटे छोटे बच्चे भी उस तरह की बातें करते हैं कि गर्ल्स ऐसे हैं वैसे, अपने आप को क्या समझते हैं, है ना, इस तरह की बातें करते हैं। हम जब बच्चे थे हमने वो सब सुन के पढ़े थे, बट ये जो पोथी पुराण ये वो पढ़ के, दुर्गा पूजा देख के, काली पूजा देख के, मुझे ऐसा लगा कि ये इनको प्रॉब्लम हुआ है, मुझे इनका ईगो क्लास, मतलब ईगो इशू हुआ है, इसलिए इन्होंने ऐसे किया। फिर पर्दा प्रथा, फिर ये वो, इवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत एक अच्छा समय है कि अभी लड़कियों को हम घर में पढ़ने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, और हर जगह तो नहीं हो रहा होगा शायद, और मेरे पास डेटा नहीं है, अभी भी बहुत सारी जगह पे या प्रांत में लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे होंगे, शायद घर में रहने के लिए बोलते होंगे, पर वो धीरे धीरे बदल रहा है, तो बदलेगा। मतलब मुझे उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख रही है। अभी तो और डाउन हो गया है सर, दहेज प्रथा में कितनी सारी लड़कियां मारी जा रही है, अभी डाउन हो गया है। अभी तो क्या है कि वो सब खबरें अभी बहुत अच्छे से आने लगा है, और ऐसा नहीं कि अभी बढ़ गया और तब नहीं था, तभी था, खबरें नहीं आती थी।
तब भी जहर देकर आपने किसी को मार दिया, खबरें पोस्टमार्टम के लिए पुलिस आपसे पूछती नहीं थी। अब तो रियल डेथ भी होता है किसी बुजुर्ग का भी, तो उसको पुलिस, मेरे बड़े भाई की डेथ हुई, अचानक हार्ट अटैक हुआ, तो भाई कहा गया कि पोस्टमार्टम करेंगे। हमने कहा भाई किस बात के लिए पोस्टमार्टम, जब डॉक्टर कह रहे हैं भाई हाई शुगर का जो भी था, एक बार हो के हॉस्पिटल से आए थे, सेकेंड टाइम हो गया, तब उन्होंने कहा कि ठीक है जैसे आपको लगे बाल, मतलब अभी ऐसा हो गया है कि भाई हो सकता है घर में किसी को मार दिया हो, पति ने पत्नी को मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया हो, ये तो अब इसको लेके अगर हम कहें कि हमारा समाज बहुत खराब हो गया, ये एक थ्योरी है। दूसरा थ्योरी ये है कि कब खराब नहीं, कब खराब नहीं। आप तो बिंबिसार और उनकी अजात शत्रु की कहानी पढ़ी, कब खराब नहीं। तो बहुत सारी चीजें खराब अच्छा सब तो साथ में चलता है, हमको क्या देखना है, हमको किस तरफ जाना है। हम तो अगर उसी को रोएंगे तो चलता रहेगा, लेकिन ये हुआ है, ये हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए, और हमको सबको जहाँ जहाँ बोल सकते हैं, करा सकते हैं, वहाँ पॉजिटिविटी लेके जाएं। इसके अलावा तो हमारे पास कोई पावर नहीं है, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के पास तो कोई पावर नहीं, मैं तो एकदम पावरलेस आदमी, मतलब क्या बताऊँ, कोई पावर नहीं, आम आदमी। और क्या पास में जी रहा था, मुझे कोई नहीं जानता है, अचानक जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा हुई कि मैं एनएसडी का निर्देशक बन गया, तो आपने मुझे बुला लिया, अदरवाइज आप मुझे कहाँ जानते। जबकि मैंने 28 साल से एक प्ले मेरा चल रहा है, किसी ने मेरे बारे में लिखा तो मैं किसको दोष दूं। ब्रॉडवे में अगर एक प्ले 10 साल चल जाता है, डायरेक्टर बिकम्स अ सुपरस्टार। आपके नाक के नीचे एक नाटक 28 साल से हो रहा है, कोई हमें नहीं ढूंढा, कोई, क्योंकि हम सिनेमा में नहीं है। तो अभी इसको लेके मैं रोऊं या मैं नए नाटक करूं, मेरा काम वो नहीं है। मैं ये करने नहीं आया था कि मेरे बारे में लोग लिखें, किताब लिखें, चर्चा करें, वो बहुत ईजी है। मैं पार्टी वार्टी करके कुछ लोगों को प्रोत्साहित करके किताबें छपवा सकता हूँ, सारा ओपन सीक्रेट है। मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम है मुझे नाचना है, मुझे नाटक करना है। मुझे जो अमृत उसमें मिल रहा है, मैं अपना टाइम वेस्ट करके कहीं मैं अपने अमृत पान को क्यों कम करूं। मैंने अपने फादर से कहा जब मैं इस फील्ड में आ रहा था, तो पार्टी लोग हैं तो घर में पूजा पाठ और पाला गायन में एक आध्यात्मिकता उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मुझे उन्होंने कहा कि क्या करने जा रहे हो, मैं MBA छोड़ रहा था, मैंने कहा मुझे MBA नहीं करना है। हमारे ज़माने में MBA वालों को नौकरी मिल जाती थी आसानी से। तो मैंने कहा आप ईश्वर में विश्वास करते हो, बोले हाँ। मैंने कहा आप पुण्य में विश्वास करते हो, बोले हाँ। मैंने कहा आप कितना पुण्य कमाए हो, तो हंसने लगे, बोले उल्टा पुल्टा बोलते हो। मैंने कहा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक कलाकार जितना पुण्य कमाता है कोई नहीं कमा सकता। आप हिमालय में बैठ के तप भी करोगे, क्यों? क्योंकि मेरा दुश्मन भी होगा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही एक्टिंग करूँगा, या मेरे पापा हैं तो आज पूरी एक्टिंग पापा के लिए करूँगा। ये जो रसास्वादन जो है, ये जो रस का आवंटन है, ये इतना इक्वल है और इतना प्रिजुडिसलेस है, तो इससे बढ़िया काम दुनिया में और नहीं है। राजनेता भले ही कहें कि हम सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रिजुडिस रहता है। कलाकार जब खड़ा हो जाता है, रावण बनता है तो सबके लिए रावण बनता है, ईश्वर बनता है तो सबके। तो मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं लोगों को खुशी देने जा रहा हूँ। लोगों को बिना बायस में अगर खुशी दे रहा हूँ, दुश्मन को भी, दोस्त को भी, रिश्तेदार को भी, अजनबी को भी, मैं सबसे बड़ा पुण्य कमा रहा हूँ। तो मुझे पुण्य कमाने दीजिए, मुझे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और दूसरा है कि जिसे कुत्ते का बच्चा है, कुत्ता उसको छोड़ देता है 8-10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, तब तक पोस्ट ग्रेजुएट हो गया था सोशियोलॉजी में। मैंने कहा अभी भी आप मेरे लिए चिंता कर रहे हैं, हमें तो पशु से सीखना चाहिए। आपने अपना कर्तव्य हमें पोस्ट ग्रेजुएट बना दिया, हमें खाऊं नहीं खाऊं, बुखार रखूं, जो भी करो, ये आपका काम नहीं। आप खुश रहिए, इसी बात की संतुष्टि लीजिए कि आपके बच्चे को आपने पोस्ट ग्रेजुएट बना दिया, अब उसने क्या करना है वो करेगा। थैंक यू सो मच। बहुत गहराई में आपने बात की, और ये सारी चीज़ें हर एक खोलो तो उसके अंदर एक पूरा ट्रीटीज निकल जाएगा। सो लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट। थैंक यू सो मच। तो आई विल गोइंग फॉरवर्ड, आपसे मेरा निवेदन है, आप अपने एक्सपीरियंस
खुल के बताइए एज अ टेलीविजन आर्टिस्ट एंड रेडियो आर्टिस्ट एंड यू एक्टेड इन ऑल द मेजर television companies, Sony, Colors, in the best capacity. But I was watching some of your videos and you were saying that you were also the first screen mother of Shah Rukh Khan. तो उन्होंने बोला कि शाहरुख खान में दिल दरिया में शाहरुख खान ने मेरे साथ काम किया था और काफ़ी ऐसे सीरियल्स और फिल्म्स आए थे. उसके बाद चक दे इंडिया में मैंने शाहरुख खान के साथ काम किया था. दिस इज very deep and also it has so much, you can make so much with that one sentence. And आपने ये भी कहा था कि having a family, a full family, growing up children, your priority was always your children. And you managed to do this body of work across 4 decades, and of course you've said that both your husband and you support each other in different ways. But that is also very challenging and मतलब किस तरह से आपने वो दोनों worlds में इतनी कामयाबी पाई. और she used to say that अगर बच्चों के exams हैं they needed me, she will say no to certain serials and she will focus on the children. The children will tell the children that I have to do this. So both things. So I mean I'm leaving it open to you all of what we've talked about, but please do dwell on this in the Women's Press Club. Firstly, thank you so much because what I felt is good. And मैं बताऊँ आपका a wonderful afternoon still. हर एक्टर जो वाकई में एक्टिंग का हम कहते हैं it is action and reaction. बात करिए आपने बोला अब मेरे हिसाब से तो मैं तो बिल्कुल शेक्सपियर को मानती हूँ. जो हम अपने निजी जिंदगी में अगर हम कामयाब होते हैं तो मतलब हमने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया, क्योंकि परफॉर्मेंस में वही है नवरस हम बताते. सुजाता जी ने मुझसे पूछा कि मैं किस तरह से मैंने हैंडल किया. शुरुआत मेरी अभिनय क्षेत्र में नाटक से हुई. दिल्ली में मैं शीला भाटिया दिल्ली आर्ट थिएटर से जुड़ी हुई थी और इंग्लिश अंग्रेजी थिएटर में करती थी. जॉय माइकल यात्रिक ग्रुप से मैं करती थी और यात्रिक में बड़े स्टॉलवर्ड्स थे यहाँ के तेजिंदर सिंह, भास्कर घोष, सागरिका घोष और शीला जी के साथ अब सब मुंबई चले गए. मैं जाती हूँ आती हूँ. अरुण माथुर थे, राज बब्बर ऑफ कोर्स मैंने बाद में ज्वाइन किया, नसीरुद्दीन शाह, वो सब एनएसडी में यहीं से पढ़े हुए हैं और इनके एनएसडी के काफ़ी कलाकार उनके साथ मैंने काम किया और बहुत अच्छा. जहाँ तक एक महिला होने का आप कह रहे थे कि ये जो डिसएडवांटेज हम कहते हैं महिलाओं के लिए शायद कुछ हद तक वो हम पर निर्भर करता है. हम दुनिया को, हम अपने पूरे परिवार को प्यार करते हैं पर अपने को नहीं करते हैं. हमारा क्या टाइम होता है, हम जो इंक्रोचमेंट करते हैं हम अपने वक्त पर करते हैं. ठीक है, जिन बच्चों को मैं इस दुनिया में लाई हूँ उनके लिए तो जाहिर सी बात है होगा, पर जहाँ तक हमारे लाइफ पार्टनर का सवाल है वो दूसरे माहौल में पले बढ़े हैं. मैं दूसरे माहौल में पली बढ़ी हूँ और मैं अगर अपना पर्सनल लूँ, मैं बंगाल की रहने वाली हूँ. आई यूज्ड टू बी जयश्री गंगोपाध्याय, जयश्री गांगुली, खाटी बांगाली जगह के बोले एक्चुअली की. तो ईस्टर्न लोगों में कुछ किक्स होते हैं, मेरे मुझ पे भी होते हैं. और क्योंकि वहाँ पर जैसे नारी शक्ति उन्होंने कहा, विमेन पावर इनका इन बंगाल you can say Assam or eastern side. You take Assam, you take Orissa, you take further. अगर आप नेपाल में जाएंगे वहाँ तो हिसाब किताब बिल्कुल उल्टा. जब दहेज की बात कर रहे हैं हम, वहाँ लड़की वाले क्या कहते हैं, दहेज लेते हैं. अगर हम अपना कल्चर देखें वहाँ जैसे इनका मेट्रिलिनियल, इन केरला मेट्रिलिनियल है और नेपाल, वहाँ पर लड़की वालों से आके पूछते हैं, पहले तय हो जाता है भाई कि 100 क्या कहते हैं तोला सोना मत मांगना, हम दे नहीं पाएंगे. वो हिसाब करके इस किस्म का वेरी लिबरेटेड और लिबरल नहीं बोलूँगी, वेरी लिबरेटेड. मैं अगर कहूँ कि
4 साल की उम्र से मैं थिएटर कर रही हूँ। थिएटर नहीं, बेसिकली क्लासिकल डांस मैंने सीखा हुआ है, पर झूमे झाड़े के अलावा किसी भी टेलीविजन सीरियल में मैंने डांस नहीं किया, क्योंकि रोल ही मैं 24-25 साल में मैंने 42 साल की भागवती का रोल किया था। तो माँ तो बिल्कुल सही नहीं सी, पर लोग कहते हैं वो बिचारी थी। मैं कहती हूँ कोई भी माँ बिचारी नहीं है। नो वुमन इज बेचारी, वो बेचारी बनती है अपने परिवार के लिए और बड़ी खुशी खुशी बनती है। आज का जमाना बहुत अच्छा आ गया है। They refuse to take any crap. Don't mind my language. Absolutely, they know themselves. हम लोग जो है, मेरा जो जनरेशन कुछ जो है, हम लोग पता उनको दुविधा में क्या करना ये सही है या ना करना सही है। Men आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली मैं बोलूँगी those who are around 40-42, जो मेरे दामाद के उम्र के हैं, बहुत ही हेल्पफुल। वो घर के काम को डिवाइड करके लेते हैं। हाँ बिल्कुल, पर हमारे टाइम में वो नहीं था। और अगर फौजी हुआ खानदान से आओ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं तो ऐसे माहौल में पली बड़ी हूँ। और देखिए ईस्ट नॉर्थ साउथ सबका ना, तो भी तो राइस ईटर्स का थोड़ा अलग रहता है, यू नो, दोज स्टेपल डाइट जिनका राइस होता है, उनका ना नजरिया जिंदगी के प्रति, जो मैंने सोचा, जो भी मैं बोल रही हूँ मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, उनका नजरिया थोड़ा अलग होता है, थोड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, शायद थोड़े स्लो भी होते हैं, शायद जैसे बोलते हैं लेजी है या कुछ है, नींद भी आती है। और नींद भी आती है, वो मिल जाए 15 मिनट तो वह क्या है। तो उस माहौल से, हालांकि फौजी जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ का बराबर ही होता है, सबके घर में वही खाना, वही दाल सब्जी दही और एक सारे बच्चे उसी स्कूल में इकट्ठे जाते हैं। और हम लोग का भी वही हाल हुआ, पोस्टिंग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो एक क्रॉस कल्चरल एटमॉस्फेयर में हम लोग पले बढ़े हैं। तो हम अपने आप को ट्रू सेंस में हम इंडियन कहते हैं, हमके प्रांतीयता हम लोग में बिल्कुल नहीं है। जब हम सोचते हैं तब तो हाँ भाई मैं तो माई मदर टंग इज बंगाली, हम तो बांग्ला निश्चित होगा बोलबो, नाले तो कुछ मुश्किल हो जाए। और ऊपर से अपने रेडियो की, आपने थिएटर किया। मैं तो ये कहूँगी, मैं तो जब भी स्कूल में ऊपर से मैंने पढ़ाया भी हुआ है, तो इन्होंने यूरेनियन सोशियोलॉजी फिलोसफी, आई डिड माय मास्टर्स इन जेनेटिक्स। तो आई वाज फॉर अ व्हाइल मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई। हर बच्चा थिएटर करना चाहता है, क्योंकि उसका एक ही कारण है कि वो अपने आप को जानना, अपने आप को समझना चाहता है। और मैं सच कहती हूँ, लोग शायद ना माने, शायद त्रिपाठी जी भी ना माने, जब आप थिएटर करना शुरू करते हैं, यू बिकम अ मोर डाउन टू अर्थ, अ बेटर पर्सन। क्योंकि आपको जो वो भाव है उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। Once you understand yourself, automatically आप जो आपके सामने वाले को भी समझ। मैंने जो किया था वो टाइम मैनेजमेंट मैंने किया था सुजाता जी। जब I married very young, by the time I was 18 and a half, I was a mother। तो मेरी बच्चियाँ तो बिल्कुल मेरे जैसे टॉयज की तरह साथ, और मुझे लगा कि मैं वो कोई कुछ भी कर ले, मुझे उनके साथ होना। और जब मैं पढ़ाती थी उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी 9th 10th 11th 12th के 40 स्टूडेंट्स, 3 सेक्शन थे, चाहे कुछ भी हो जाए उनको मैं आई कुड पुट देयर लाइफ टू जेपीडी। मैं उनको मेरे बगैर बहुत मुश्किल काम था। वहाँ पर मैं उनको बोलती तो तुम जल्दी आओ, अपना होमवर्क करो, होमवर्क करके 10-15 मिनट आधा घंटा रेस्ट करो, जाओ खेलो, अभी मुझे अपना लेसन प्लान बनाना है। और आजकल की टीनेजर्स, अगर आप अच्छा पढ़ाती हैं, अच्छा काम करती हैं तो दे विल लव यू, अगर नहीं है तो आपको ढूंढ के रखेंगे, दे विल रिप यू अपार्ट। मैं देखती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए कभी भी मैं नहीं बोलती हाँ ये ऐसा होता है, नहीं कल मैं बताऊंगी, आई विल चेक एंड आई विल टेल यू, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर जो मैं आपको बोलूँगी।
अभी somebody was saying कि महिलाओं को आजकल की वो चलाई जाती है, ये है वो है. I have to be butt of all these things. जब मैं पढ़ाती थी तो लड़के मैं पोएट स्कूल में पढ़ाती थी, पोएट कॉलेज में पढ़ाती थी, तो वहाँ पर बच्चियाँ होमवर्क नहीं करके लाती थी, लड़के अपना जैसे तैसे करते. तो जब मैं उनसे पूछती थी कि भाई होमवर्क, व्हाई हैवंट यू डन होमवर्क? मैं सुनो मम्मी ने ये बोला करने को, वो बोला करने को, ये बोला भाई का उसके टाइम पे देना, उसका कपड़ा. मैंने कैसा नहीं करोगी तुम? टुडे आज तुम अगर चाय बनाओगी तो कल तुम्हारा भाई बनाएगा. उसके लिए जो सीनियर लेडीज जो हुआ करती थी उनके घरों की, वो क्या बोलती थी पता? एक नवी टीचर नहीं आई है जो कुड़िया को पढ़तांदी है. So a woman even today, or how it was, to make sure that I am heard. What I want to do, I must do. काफी struggle के साथ साथ थोड़ा tough भी हो. You have to live it up. I'm sure all of us have gone through this. रेडियो मैंने शुरू किया when I was I think 12-13 साल की उम्र में, और बहुत अच्छा लगा रेडियो का. आज भी मैं बोलूँगी, चाहे आप थिएटर करो, फिल्म करो, टेलीविजन करो, मैक्सिमम हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं ना, that is it. क्योंकि मैंने सारे you have to create visual through. बहुत हर एक्टर को रेडियो में चाहे भले आप 5 पेज करो, आप 5 नाटक करो, आप फीचर्स करो, आप वॉइस ओवर करो, पर करना जरूर चाहिए. डिक्शन ये हम फिल्म देखते हैं. आज तक मैंने अक्षय कुमार को फिर नहीं बोलते सुना, और फिर आते रहते ऑलवेज. डिक्शन इतना इम्पोर्टेंट है जो कि हमें थिएटर से, जो हमें रेडियो सिखाता है. और क्योंकि थिएटर या जो एक्कोलेट्स आपको देन एंड देयर, वाह की ताली भी वहीं पर मिलती है और सड़े टमाटर भी वहीं पर मिलते. तो इट इज लाइफ इमीडिएटली यू आर रोड. जब मैं दिल्ली में आई, जालंधर से मैं यहाँ आई और मैं काम कर रही थी, थिएटर में भी मैं काम कर रही थी. वीएम बडोला, विश्व मोहन बडोला वो थे, फिर अपने पीयूष मिश्रा, ये जितने भी स्टॉलर सब बहुत कर रहे हैं. तो वो थोड़े किसी कौन आ गई है, भागवती का रोल मिल गया एकदम से भी, और मैं किसी को भी नहीं चाहती थी स्क्रीन में. वही बात हो जाती है कि फोकस एंड यू शुड नो व्हाट यू वांट. जर्नलिस्ट के ज़्यादा कौन ये कर सकता है? मोस्ट स्ट्रगलिंग लाइफ आई थिंक एक्टर्स के बराबरी में है आप लोग, तरह के. कोई भी विधा में आप करें, फोकस इज द मस्ट. योर डिक्शन, योर आर्म्स, जिसको मैं आर्म्स करती हूँ, वो तब मुश्किल मुझे काफ़ी हुआ हैंडल कर, इसको बैलेंस करते बहुत मुश्किल हुआ. और अगर मैं कहूँ कि मेरे हस्बैंड ने हेल्प किया या किसी ने किया, नो. मेरे जो घर में मेरी हाउस हेल्प थी दोनों, उन्होंने मुझे जब मैं जाती थी बच्चों के, जब बच्चे मेरे पहले तो फील्ड में थे, उसके बाद श्रीलंका में थे, 5-6 साल सिंगल हैंडेड, आई वाज अ सिंगल मदर टू लुक आफ्टर them. वो छोटे थे, बहुत छोटे थे, टीनेज. क्या हुआ कि जब मुझे फिल्म वगैरह मिल गई, मेरी शुरू हुई दादा वाज माय फर्स्ट फीचर फिल्म वेयर आई प्लेड मिठू चक्रवर्ती's मदर. तो मैंने कहा कलावती जी ऐसा मिल रहा, मैं तो जा नहीं पाऊंगी. बोली क्यों नहीं जा पाएंगी आप? मैं हूँ, बेटियों को मैं रात के आ जाऊंगी, 2 लुक आफ्टर. तो अगर मुझे किसी ने हेल्प किया, दैट वाज माय हाउस. They helped me a lot, and whatever, if I have no, I cannot shy away. अगर मैं जैसे भी काम, जब मर्जी जाती थी, काम करती थी, एग्जाम्स के टाइम पे उनके साथ रहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, it is only because of my two house. God bless their soul. मुश्किल तो है, but it is not all that difficult. No, I आप लोग भी तो रात को जाके इधर इंटरव्यू, उधर का उधर का उधर, क्या नहीं होता है. और आज you have to be, पर वक्त पहले से भी बहुत अच्छा. Definitely.
फॉर अ वुमन डेफिनेटली अच्छा हो गया। देखिए कितने विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स आ रहे हैं। और सबसे तकलीफ क्या है पता, आई एज एन एक्टर मैं बोलूँगी कि हमारे यहाँ इसलिए महिलाओं को बोला जाता है कि वो 5 साल जेब में रखती है, जेब में नहीं रखती है। जो रिंकल्स जो लाइन्स होते हैं फॉर अ मैन इट इज एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस आपका अनुभव है, और हमारे लिए उम्र का That's what it is. ये चीजें हटनी चाहिए मैं समझती हूँ एज एन एक्टर, एज अ फीमेल एक्टर जो मैं सोचती हूँ इस चीज को डेफिनेटली करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि चाहे ये थिएटर वर्ल्ड हो चाहे ये फिल्म वर्ल्ड हो, बहुत अच्छी फिल्म है मैं बताऊँ। अगर ये खराब हो रहा है तो हम पर डिपेंड करता है। यू नो इफ यू आर इजी ओके जैसे तैसे हमें रोल मिल जाए तो फिर तो anything if you are ready to do anything people are already there। अब दूर क्यों जाते हैं, घर में ही देखिए आप हाउस वाइफ सुबह उठ के बोलती नाश्ता बना, अभी हमने नहीं खाना 10 बजे खाना, अच्छा ठीक है क्यों 10 बजे खाना भाई, 8:30 बजे सब बैठे हैं तुम्हारे लिए बन रहा, तुम तभी खाओ क्यों 10 बजे, क्योंकि बेचारी माँ फिर 10 बजे जाके आटा बना के रोटी बना के दे दिया। नॉट एवरीबडी हैज अ हाउस हेल्प 24 आवर्स हेल्प, और आज इस महंगाई के जमाने में तो बहुत मुश्किल है। तो इट इज दी यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। अगर आप बोले कि बच्चा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आज वो आपके साथ कर रहा है कल अपनी बीवी के साथ करेगा। तो हम लोगों को एज नारी शक्ति जो कहते हैं ना, लोपामुद्रा गार्गी मैत्रेयी इसी धरती से पैदा हुए हैं, झांसी की रानी और कौन नहीं, पर अगर हम ही अपनी शक्ति को ना समझें तो फिर कैसे हो सकता है। और जिंदगी की तो यू कैन नॉट से दैट इट इज मेंट फॉर। सबसे ज्यादा दुश्मन अगर एक औरत की होती है सासू माँ। हम गलत हो सकते हैं, सासू माँ गलत हो सकती है, पर सबसे ज्यादा किसी ने नहीं बोला घर की बहू को जलाया है किसने, मदर इन लॉ। अभी फादर इन लॉ साथ दे देते उठ तो बैठ वो तो करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। So we have to be very whether we are actors, we are teachers, we are journalists, or plain and simple we are homemakers। और सबसे मुश्किल है मैं बताऊँ आपको एक होम मेकर होना। मैं हमेशा अपने आप को पार्ट टाइम हाउसवाइफ बोला करती थी, and I felt very nice that I was a part time housewife। और भी कम है जमाने में रोटी पकाने के सिवा अच्छे से। So a complete woman you have to be, and ये जिंदगी की जो हमारी जिंदगी है, you cannot live male और you cannot जो फीमेल को नहीं कर सकते। It is 2 पहिया है, और अगर दोनों को अगर आप ये बहुत something very ये दोनों को अगर आप अच्छे से ऑयल करें ना तो आपको स्टेपनी की जरूरत पड़ेगी। You will never need a step। प्रॉब्लम क्या होता है हमारे स्पेशली हमारे as you said women they have to face certain things। तारीफ है ये है वो है फलाना है, and then जो एक लाइन होती है चित्रंजन जी मुझे मैं जनरल अपने आप को बहुत समझे, ओह यू आर सो वंडरफुल, आप कितनी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, इतना समझती हैं। हमारा देखिए मैंने कहा जी आप लोगों का क्या है पता, अगर बीवी खूबसूरत हुई कमाती है तो आप जाके दूसरे को बोलेंगे क्या यार मुझे मेरी तो परवाही नहीं करती है, मुझे तो समझती नहीं है ये। और अगर उल्टा हुआ तो मुझे मेरा मेंटल लेवल नहीं होता। That is the problem, and problem is with us there। We have to reach as an actor तो you have to भी actors का तो सच बताएं फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है जब हम प्ले करते हैं, जब you know that pent up जो हमारा एनर्जी जो गुस्सा है एनर्जी। आजकल तो सबसे पहले आप please insist that all the school curriculum they should have theatre as a proper subject। I think last 10 साल 15 साल से जब भी मुझे उसके लिए बोलते थे I said you have to have। ये जो डिप्रेशन है ये है वो है इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। The actors are good human beings, not because I'm an actor, no, not for that। Because you feel better, you see better। आप समझते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो होता है
when you are an actor or a director in this field, you have the gift of the gap. You can talk just like you are journalists. You can talk on any subject. So I hope I have completed what was it said. I mean, what you want to do. So you're free to take off on any runway. And as far as pitfalls are concerned, as a woman, there are pitfalls, as I say, but it's something. It's something. As मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक माँ ही होती है जिसको आप कैसे भी नचाओ घुमाओ फिराओ, वो कभी नहीं बोलती है कि मेरे बच्चों ने मुझे ऐसा किया। रात को 12 बजे भी अच्छे से गरम गरम खाना रोटी, आज के लोग भी, आज के प्रेजेंट जनरेशन भी कोई करेगा, बट नहीं तो उनको कहाँ वक्त मिलता है अपने पर थोड़ा। ऑलवेज ऐसे लोग मुझे कहते हैं यू आर अ वुमेन्स चैम्पियन। आई सेड ऑफ कोर्स आई एम अ वुमेन्स चैम्पियन, नो डाउट अबाउट इट। अमाउंट दे आर डूइंग, मैं तो उन खुशनसीबों में से कुछ में से हूँ जो कि अपना बोल सकती हूँ, आधे लोग तो बोल भी नहीं सकते। एंड दे जॉली वेल लिसन टू मी, नो क्वेश्चंस ऑफ। तो वही बोलती थी कि भागवंती बेचारी, the butter won't melt in her mouth. I said, yeah, I can chew up the butter very nicely. And at that time I was 25 and a half. When I put, अभी तो फिर मुझे but it was very nice. This जो जर्नी मेरी रही है बहुत अच्छी रही है, बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया, इतना कुछ सीखा। मैं बताऊं, लेक टंडन, सुल्तान अहमद थी, you name रमेश सिप्पी, all big stars, और कुछ जिन्हों मैं इतना पसंद करती हूँ, जब उनके साथ काम करने को मिला इतना सीखने को मिला। But my first love is radio followed by theatre. कुछ जैसा कुछ भी नहीं। हम लोग सब स्टेज पे ना, we are alive. We are alive. We are different. That's what it is. But even today theatre also, अगर पीछे जाए, नाट्य शास्त्र अगर हम पीछे जाए, थिएटर में काम वेस्टर्न लोग बहुत कर सकते हैं। टैगोर ने बहुत किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने, his plays are fantastic, मालूम जो जितना भी है, पर उनके पास पैसा इतना था, जहां आपने सोचा रोल क्यों लेना पड़ता है, एक तो अर्ज ऑफ एक्टिंग, दूसरा भाई घर भी तो चलाना है कि नहीं, वहां पर जाके प्रॉब्लम आ जाती थी। कल क्या हो, what is a lot of social evils are coming because of that. कटथ्रोटिज्म है हमारे फील्ड में बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं। आप मेरे साथ हुआ है, आपने बोला कि हाँ आपको हम पर डे या पैकेज कितना देंगे, कोई जगह बोला आई डोंट नीड द मनी। यहाँ पर नीड का नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं, उसका मेहनताना आपको मिलना चाहिए, और स्पेशली व्हेन यू आर मेकिंग सो मच ऑफ मनी। नुक्कड़ नाटक करो, आप कुछ में कहाँ पैसे हैं भाई, कुछ भी नहीं है, वो तो अपना पैशन फुलफिल करने के लिए। That's what it is. Any questions you all have? Yes, I think no, just one minute. We can hand over and do the question answer sessions. Okay, we can do that. Saroj, so please, with General Secretary Saroj Sudhir, please hand over. Conduct Q&A. जरूर जरूर। मैम की बात सुन के मेरा एक रिक्वेस्ट है सबको, नारी शक्ति मत बोलिए, एडजेक्टिव जोड़ दे, शक्ति है, इट इज ओनली शक्ति। नारी शक्ति क्या है? नारी मतलब शक्ति। इसलिए हमारे जो मतलब पहले की जो लिखावट में भी वही है, डिक्लेयर कर दिया कि शक्ति, नारी जो है शक्ति है। अब वो उसको नारी शक्ति कह रहे हैं, शक्ति केवल नारी के पास है। एक दूसरा, जब हम बचपन में पैदा होकर जब बढ़ रहे होते हैं, छोटा जब वो थोड़ा सा सुनना समझना शुरू हो जाता है, एक्सप्रेशन देख के थोड़ा समझना शुरू होता है, हर एक बच्चा एक्टिंग करता है घर में। वो कर क्या रहा होता है, वो रोल प्लेइंग करता है, वो रोल प्लेइंग करता है, आपको एंटरटेन करता है। सो थिएटर हर घर में, हर माँ बेटे के बीच में पहले शुरू हो जाता है। माँ ऑडियंस बन जाती है, वो एक्टर बन जाती है, और जो नवजात शिशु है वो मेन एक्टर बन जाता है।
वो कुछ करते रहता है। सो फितरत जो है हमारी, वी ऑल आर एक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये नाटक है, ये नाटक है और एक्टिंग कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज, वी आर हियर टू रिएक्ट। एक्ट तो नेचर ने कर लिया, परमात्मा ने कर लिया, बिग बैंग हो गया, ये हो गया, वी आर जस्ट हियर टू रिएक्ट। तो ये जो बच्चा है उसके साथ हम बाद में इतना इन्ह्यूमन हो जाते हैं कि उसको पीट पाट के, डरा धमका के उसको डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, ऑफिसर बना देते हैं। उसको कहते हैं बेटा ये नहीं, तू ये करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे 300 साल का इतिहास है कि अंग्रेज आए, उनको अंग्रेजी समझने वाले लोग चाहिए, उनके टाइपराइटर में टाइप करने वाले लोग चाहिए। तो आपके स्कूल्स को सब बंद कर दिया, आपकी भाषा के स्कूल वर्नाक्युलर स्कूल्स बंद कर दिया, सब कर दिया, आपको कहा कि आप ये करो। तो लोगों को लगा कि चाकरी करना, जो शासक है उसके वहाँ जाके चाकरी करना इज द मेन जॉब, इसलिए वो मेन स्ट्रीम हो गया और ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। लेकिन जब पलट के देखेंगे पीछे जाके जो नाट्यशास्त्र लिखा गया तब ये मेन स्ट्रीम था, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी था, इट वाज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए हर एक मंदिर में नाट्य मंडप आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इन लोगों को जो भी 4, 10, 8 जो भी नाटक करने वाले होंगे या अभिनय करने, उनको पेडिस्टल पर खड़ा करके रखा जाता था, लोग उनको देखें। वही है कि वो एक सोशलाइजेशन प्रोसेस का भी एक हिस्सा हो जाता है और एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हो जाता है, नॉलेज का शेयर भी हो जाता है। सो जब हर बच्चा नाटक करता है तो हम सब नाटक करते हैं, और ऑन स्टेज नहीं करते, लाइफ में कर लेते हैं। झूठ बोलना भी तो नाटक है, डराना भी तो नाटक है, पनिशमेंट देना भी तो नाटक है, नाजायज बात करना भी तो नाटक है। और जो नाटक को, जो दुनिया को समझ लिया, समाज को समझ लिया, वो नाटक करेगा। जो नहीं समझ पाया वो नौटंकी करेगा। हाँ सर, आपका सही कहना है कि हर चीज़ एक नाटक ही है जो भी हम कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि नाटक एक समाज का एक आईना है, क्योंकि जो भी चीज़ें समाज में हो रही है वो नाटकों के जरिए होती रही है। लेकिन जिस तरह समाज बदल रहा है, जिस तरह राजनीति बदल रही है, क्या नाटकों में उसका असर आ रहा है या नाटक वहीं अभी अपनी अहमियत बचा के रखे हैं? ये मेरा क्वेश्चन। समाज जैसा भी बदलेगा, जैसे मान लीजिए पहले हिंदुस्तान में जो नाटक खेला जाता था मोस्टली माइथोलॉजिकल प्लेज, मोस्टली, फिर धीरे धीरे सोशल प्लेज आने लगे जिसको काल्पनिक कहा जाता है, हिस्टोरिकल प्लेज आने लगे, और ये जो मोहन राकेश लिखने लगे आधे अधूरे और जो भी, या इब्सन का प्ले यहाँ खेला गया, या चेखोव का प्ले खेला गया, ये हिंदुस्तानियों के लिए नई बात इसलिए लगी क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी नहीं थी। आप एक नाट्यशास्त्र जो पढ़ते हैं तो नाट्यशास्त्र में उसका जिक्र पहले से है कि नाटक कितने प्रकार के हो सकते हैं। जो सो कॉल्ड फार्स हम कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड का देन है कि भाई फार्स जो है फ्रांस में शुरू हुआ, ये हुआ, वो हुआ, झूठ है। क्योंकि नाटक के जो प्रकार बोल रहे हैं उसमें प्रहसन नाम की चीज उस समय कहा गया है। भगवद अज्जुकम एक प्रहसन जो संस्कृत नाटक है। सो कहने का मतलब है कि नाटक के ऊपर पहली बार ट्रीटाइज नहीं लिखा गया और एक ब्रॉडली कह दिया गया कैसे ऐसे ऐसे। सो वहाँ पे राजाओं के बारे में भी नाटक लिखा गया। भगवद अज्जुकम दूसरा है, कॉमन मैन के ऊपर। और फिर अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा गया। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास लिखते हैं, अब उसके श्लोक और लिखने का वर्णन वो सब छोड़ दीजिए, अगर छोड़ दें तो देखा जाए तो उसमें क्या आ रहा है, मतलब मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। एक राजा वो मरेरिया में जाता है, काम करने जाता है, वहाँ कोई ऋषि कन्या दिख जाती है और राजा अट्रैक्टेड होता है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, राजा निकल लेता है, उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि बहुत बड़ा सोशल सटायर था। हम खाली क्लासिकल कहते महिमा मंडल करते हैं, नहीं। विचार जो है ना, जो क्रांतिकारी विचार है, जो क्वेश्चन करना राजा को, ये कालिदास का तो पॉलिटिकल प्ले।
अभिज्ञान शकुंतल एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही थी कि जो बोल रहा है क्या आप लोग उसको प्ले में दिखा पा रहे हो आप उसी तरह जो आप आइए ताजमहल का टेंडर देखिए 28 साल से चल रहा है। आप आइए अभी तमस हो रहा है सो तरह तरह के प्लेस होते रहेंगे। हो सकता है कल जो कि रोबोट्स आ जाएंगे हमारे लाइफ में घुस जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा इमेजिनेशन है कि आने वाले टाइम पे कौन कितना स्टेटस सिंबल होगा कि जिसके गेट पे चौकीदार नहीं होगा, रोबोट खड़ा वो भगा भगा के मारेगा। जिसके घर में मॉपिंग के लिए रोबोट्स होगा, अरे उसके घर में वो स्टेटस सिंबल होगा। उस तरह का समाज जब 10-15 साल 20 साल में होगा, नाटक भी वैसे ही लिखेंगे। और लिखने वाले कौन होंगे? उस जनरेशन के लोग होंगे। तो समाज बदलता रहेगा, रंग रूप बदलता रहेगा, लोग लिखते जाएंगे और सारे नाटकों की जो मुख्य चीज है वो क्या है? सहूलतें, सुविधाएं और उन सुविधाओं को भोगने वाले और जिनको नहीं मिला जो अस्पताल इसी के लिए सब होगा। तो किसी के घर में अगर 4 रोबोट्स होंगे, किसी कोई पेड़ के नीचे सोच रहा हो कि एक दिन मेरे पास एक होगा, जब होगा तब देखूंगा। तो ये सब होता रहेगा, इसमें कुछ मतलब हमें चिंतित हाँ चीज और चेंज तो कुछ भी नहीं होगा। चेंज क्या होगा? बुरा अच्छा इसी का डिबेट डिस्कशन में हम मर जाएंगे, फिर नए आएंगे बुरे अच्छे उसी के डिस्कशन में बुरे होकर वो मर जाएंगे, फिर कोई आएंगे बुरे अच्छे। आज हम ऐसे बैठे हैं, हो सकता है कोई लटक लटक के बोल रहा होगा नई टेक्नोलॉजी। जैसे सिनेमा में, सिनेमा नाटक से शुरू हुआ कि नाटक को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर लोगों को लगा क्या मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं कटिंग करके करता हूँ। इतने लोग हैं, मुझे सारे लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है, मैं क्लोज ले लेता हूँ, 2 शॉट लेता हूँ, 3 शॉट लेता हूँ। फिर लोगों को लगा कि मैं ट्रॉली लगा देता हूँ, घूम घूम के उनको देखूंगा। फिर लगा क्रेन लगा देता हूँ, मैं यूं करके उसको देखूंगा। फिर लगा ड्रोन ले लेता हूँ, मैं उड़ के देखूंगा। देख तो रहे। सो हो सकता है डिबेट डिस्कशन 25 साल के बाद हम ट्रेन पे बैठ के कर रहे होंगे, आई डोंट नो। एआई हमको क्या सिखा रहा होगा? बट रिमेंबर, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस है। हम इस आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करके इसको एक्सेप्ट करके इसको भोगने के लिए एआई को भोगो। सो थिएटर वालों को मैं कहता हूँ डरते हैं कि एआई आ गया, मैंने कहा एआई आ गया, वर्चुअल वर्ल्ड में लोग फंसेंगे, रियल आदमी को देखने आएंगे तो हमारे तो बहुत ब्राइट फ्यूचर, हम तो ज्यादा पैसे लेंगे। क्या है भाई, आ जाओ, तुम्हें चिल्लाते हुए 10 दिन में मैं दिखाऊं, तुम्हें भागते हुए पसीना चाहिए मैं दिखाऊं, आ जाओ। हमारे तो मतलब ब्राइटेस्ट टाइम आ रहा है, तो हमें और हमारे पास आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस है। रियल एआई एक्चुअली लाइज इन मी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो कहने का अर्थ है कि समाज में हर तरह के नाटक लिखे गए हैं, लिखा जा रहा है, लिखा जाएगा। हाँ, नाटक लिखने का नाटक बहुत कम लोग लिखते हैं। कारण ये है 10 पेज टाइप करने से मुझे टीवी सीरियल में 15,000 रुपये मिल जाता है एक एपिसोड। एक दिन में मैं 15,000 20,000 कमाऊँ। एक नाटक लिख के मैं लोगों को गुहार लगाऊं, भाई थोड़ा पब्लिश कर दो। फिर वो इंटेलेक्चुअल तय करेंगे कि वेदर इट इज अ गुड प्ले और बैड प्ले। ये जो इंटेलेक्चुअलिटी की जो माफियागिरी शुरू हो गई, उस वजह से नाटक लेखन कम हो। इंटेलेक्चुअलिटी की जो माफियागिरी शुरू हुई, क्या है टेलीविजन ऐसी तैसी, क्यों ऐसी तैसी? आप लिख सकते हो, लिख के दिखाओ, नहीं लिख सकते। डेंटिस्ट की ऐसी तैसी एमबीबीएस नहीं हो सकता, वो अलग साइंस है। एक गायनेकोलॉजिस्ट की अलग साइंस है, ऑन्कोलॉजिस्ट की अलग साइंस है। ये हमें समझना पड़ेगा। और ये जो अहंकार है, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, बहुत जानता हूँ। सपोज फॉर एन एग्जांपल, आई एम फ्रॉम एनएसडी, हम 3 साल के इंटेंस कोर्स करते हैं। हमसे ज़्यादा कौन थिएटर को समझता होगा? ये गलत है। हमसे ज़्यादा समझने वाले भी होंगे, और अच्छा रहेगा मेरे लिए अगर मेरी आंखें खुली हैं, मेरी ज्ञान चक्षु खुली है, तो हम 15 साल के बच्चे से भी सीख सकते हैं। मुझे एक बच्चे ने ताजमहल के टेंडर के लिए, किसी बच्चे ने बोला वहाँ 18 साल से हम 28 साल से पहले इंजेक्ट करता है गुप्ता शाहजहां को, और वो चिल्लाता है, कहता चिल्लाता है, उसको दर्द होता है। मुझे किसी बच्चे ने बोला क्योंकि वो मुमताज को मुम्मो कहता है, मुम्मो प्यार से कहता है, वहाँ पे अगर आप मुम्मो चिल्ला दोगे ना, you will get a laughter. क्या बात, वाओ। And it's just an 11-year-old kid. I did my last shows.
I did the same thing. I am playing Shah Rukh Khan. I did the same thing and I got good applause. अच्छी तालियां मिली और मैं डायरेक्टर हूँ उस प्ले का 28 साल से, मेरे माइंड में वो नहीं आया। अब मैं सोचूं बच्चा क्या रहा है, चुप रहे, दुनिया ऐसे आगे नहीं जा सकती। तो इसलिए जितना हो सके हम खुदा रखते हैं कि नाटक भी लिखे जाएंगे और बहुत कुछ होते आ रहे हैं, होता आ रहे हैं। मतलब हमें खुश रहना चाहिए। सर ये बॉलीवुड और एनएसडी का कनेक्शन बहुत रहा है, काफ़ी सारी स्टार्स जो है वो गए हैं। अब अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में कितने क्या बॉलीवुड की तरफ कुछ स्टार्स जा रहे हैं, एनएसडी कुछ दे रहा है उधर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? कभी अभी उतना जो है वहाँ पर उस तरह का इंस्टीट्यूट अभी भी नहीं, जैसे पहले था सालों पहले से, जैसे हम लगातार देखते आ रहे हैं काफ़ी अच्छे और बड़े स्टार्स और मंचीले स्टार्स जो है एनएसडी की फिल्म इंडस्ट्री को भी। मुझे पता है स्टार्स कब थे एनएसडी, और वो भी बड़े स्टार्स। मुझे कौन एनएसडी का स्टार होते हैं, बड़ा स्टार। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया, मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे मेरे सुपर सीनियर्स, brilliant world class actors, brilliant world class artists we produce. We don't believe in star system. तभी मैंने बोला मंझे हुए एक्टर्स हमने दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं। अगर आप ओटीटी को खंगालेंगे, मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मैं 44 फिल्म्स करके बैठा हूँ आपके सामने। इसमें मैंने 10 सीन किए, इसमें 15 सीन किए, इसमें 10 लाइन किए। आप मुझे नहीं जानते हैं तो ये मेरी गलती नहीं, और मैं इंडस्ट्री से हूँ, ये भी मेरी गलती नहीं। कहने का अर्थ ये है कि मुझे कोई एयरपोर्ट पर मिल जाता है, पहले देखता है तो वो गेहूं करके ज़्यादा में करते हैं, तो फिर उसके बाद गेहूं करके आता है, फिर आके बोलता है हेलो सर, you're an actor, you're a real actor sir, big fan, can I have a selfie? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो अभी है नहीं, लेकिन नाम आएगा। आपने मुझे कहाँ देखा? सर मैंने शुभमंगल साधन देखा, उसमें आयुष्मान खुराना के फादर बने थे, एकदम करेक्ट है। तुमने मुझे आज इतना मोटिवेशन दिया कि मुझे और काम करना है, तब जब तक मैं आपके बेडरूम में ना पहुंचाऊं मेरा नाम लेके, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। अच्छा मानने वाली बात यह है कि लोग हमें किरदार को याद रख रहे हैं, और लोग ऐसे 4-4 लाइन वाले 10-10 लाइन वाले एक्टर्स हैं, लोग उनको याद रखते हैं, और मैं उनको बोलता हूँ कि उसका नाम बता, मैं डायरेक्टरी निकाल के बताता हूँ एनएसडी का। नवाज सिद्दीकी के बारे में आप लोग आजकल बहुत जानते हैं। नवाज सिद्दीकी जब बिल्कुल अनजान थे, आज से 28 साल पहले, 30 साल पहले, उन्होंने सरफरोश किया था आमिर खान के साथ, और नवाज सिद्दीकी और साथ में और एक थे यशराज यादव, दोनों हमारे एनएसडी से। वो सीन लोग हंस के पागल हो जाते हैं, और वो एनएसडी के थे। आज अगर नवाज नहीं होते तो भी वो एनएसडी के थे। समाज क्योंकि थोड़ा सा ऊपर देखता है, समाज का है कि थोड़ा ऊपर देखता है, सो इसलिए वो नवाज को देखने लगे हैं। समाज नीचे नहीं देखता, इसलिए कहा हाँ अच्छा था, वो काला सा लड़का था, ऐसा था, सॉरी ऐसे हो गया, नाराज हो जाएंगे, बट लोग ऐसी बात करते हैं। तो ये समाज का देखने का तरीका, नजरिया है। लेकिन एनएसडी अनवरत अथक